So, hello English learners. Today is the day 56 and today we are going to practice 1000 sentences. Yes, daily use sentences which we are going to practice today, and we are going to start like daily use sentences. How you are going to say like खुश रहो, be happy, खुश रहो, and और कुछ भी नहीं, nothing else, come here, go there, let's talk. All these sentences we are going to practice. Okay, so first 1000 sentences, 1000 sentences. Okay, sentences we are going to practice. So first let's understand for English speaking, for English speaking, for English speaking, we just two types of sentences we speak. Okay, so for English speaking, two types of sentences we speak. First is small sentences. Okay, first is small sentences. Okay, first is small sentences, and the second is long sentences. Okay, big sentences, long or big sentences, or you can say like topic related. Okay, topic related. So today we are going to practice small sentences. Okay, so you can use in your daily life, you can use in the conversation. So English speaking, small sentences and big sentences. Today we are going to practice lots of sentences, and also I'm going to give some exercises which you have to do. Okay, so let's start practicing. Let's start practicing. So if you have to say like खुश रहो, ठीक है, खुश रहो, उसके लिए हम बोलते हैं be happy. ठीक है, be happy, खुश रहो. अगर आपको बोलना है खुश रहो, be happy, खुश रहो. ओके, और कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं, NOTHING, nothing else, nothing else, और कुछ भी नहीं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू से कुछ भी नहीं, nothing else, कुछ भी नहीं. यू नीड मोर समथिंग, आपको और कुछ चाहिए, nothing else, कुछ भी नहीं. देयर इज समथिंग, nothing else, और कुछ भी नहीं. ठीक है, आई एम हर्ट, चोट लग गई, मुझे चोट लग गई. सो बोलेंगे आई एम हर्ट. हर्ट मीन्स चोट लग गई, चोट पहुंचाना. यू हर्ट मी, तुमने मुझे चोट पहुंचाया. आई हर्ट यू, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया. आई एम हर्ट, मुझे चोट लगी, मुझे हर्ट हुआ. ठीक है, आई एम हर्ट, मुझे चोट लगी, मुझे हर्ट हुआ. से एनीथिंग, आपको बोलना है कि कुछ कहो. ठीक है, इफ यू हैव टू से लाइक कुछ कहो, say anything, you can say anything. Okay, remember all these sentences. Say means कहो, और anything, कुछ भी. Like I meet with you and I said like say something, कुछ कहो. या फिर you can also say like speak anything. Say something, कुछ कहो, या फिर speak something, कुछ बोलो. ठीक है, speak something, speak anything, कुछ बोलो. and say something, कुछ कहो, speak anything. okay, say anything, कुछ कहो, speak anything, कुछ बोलो, and say something. Say something, कुछ कहो, speak something, कुछ कहो. ठीक है, so you can just talk in different sentences. Okay,
you can just express your thoughts in different sentences. Don't think like if I want to say this one line in Hindi, there will be only one sentence in English. Don't think like this. Okay, so एक सेंटेंस को बोलने के हमारे पास many ways हो सकते हैं. ठीक है, so remember this. And suppose you have to say like what's up, क्या हाल चाल है. सो उसके लिए हम बोलते हैं व्हाट्स अप. ठीक है, व्हाट्स अप, कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है. व्हाट्स अप, कैसे हो. ठीक है, हाउ आर यू की जगह व्हाट्स अप, कैसे हो. व्हाट इज गोइंग ऑन, और क्या चल रहा है. ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, और क्या चल रहा है. व्हाट इज गोइंग ऑन, और क्या चल रहा है. एंड व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है. ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है. यस, सो ऑल दीज आर द सेंटेंसेस, small sentences which we can practice. Okay, so we are going to use all these sentences in our daily life. And let's do some exercises also. Come outside, बाहर आओ. ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे इसको आपको बनाना है. ठीक है, you have to make the sentences. बाहर आओ, हाँ? अंदर आओ, अंदर आओ, एंड बाहर जाओ. बाहर जाओ. मैं बीमार हूं. मैं बीमार हूं. ओके, क्या हुआ. So make all these sentences. There are 5 sentences which you have to make. Okay, you have 30 seconds. Make all these sentences. बाहर आओ, क्या बनेगा. Just think and make the sentences in your notebook. Then we are going to match. Okay, so बाहर आओ, अंदर आओ, बाहर जाओ, मैं बीमार हूं, एंड क्या हुआ. ठीक है, क्या हुआ. सो बाहर आओ, इसके लिए बोलते हैं, बाहर को हम बोलते हैं आउटसाइड, और कम आओ मीन्स कम. सो हमारा हो जाएगा कम आउटसाइड. ठीक है, कम आउट साइड, बाहर आओ. कम आउटसाइड, बाहर आओ. अंदर आओ, कम इन. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कम इन. कम इन, अंदर आओ. ये कम इन इनसाइड, कम इनसाइड, अंदर आओ. ठीक है, अंदर आओ, कम इन, और कम इनसाइड, अंदर आओ. बाहर जाओ, बाहर जाओ. बाहर जाओ मीन्स गेट, और आउट बाहर. गेट आउट, बाहर जाओ, बोलते ना गेट आउट, बाहर जाओ. एंड मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, आई एम इल, और आई एम सिक. आई एम इल और आई एम सिक. क्या हुआ, क्या हुआ. what happened, what happened, क्या हुआ. ठीक है, so all these are the exercises which we have done, and like this we are going to continue our class. First we are going to learn the structure, we are going to know the sentences, then I am going to give you the exercise which you have to do. Okay, so let's learn next. नेक्स्ट हमारे पास है
हाउ ब्यूटीफुल, कितना मतलब खूबसूरत है। सो उसके लिए हम बोलते हैं कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। सो उसके लिए हम बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल। ओके, हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, ठीक है। हाउ अडोरेबल, कितना सुंदर है। हाउ अडोरेबल, अडोरेबल मीन्स सुंदर। हाउ अडोरेबल, so you don't have to say like how beautiful. How beautiful, yes, this is an old verb, okay, but you can use how adorable, कितना सुंदर है, ठीक है। how adorable, कितना सुंदर है। how big, कितना बड़ा है, ठीक है। उसके लिए हम बोलते हैं कितना बड़ा है, how big। how big, कितना बड़ा है, ठीक है। कितना छोटा है, how small। how small, कितना छोटा है। how big, कितना बड़ा है। how tall, कितना लंबा है। how small, कितना छोटा है। एंड बी केयरफुल, ध्यान से रहो, ठीक है। ध्यान दो, बी केयरफुल, बी केयरफुल, ध्यान दो, ठीक है। ध्यान से रहो, ध्यान रखो। ऑल दीज, so these are the some sentences, 2 to 4 5 sentences, okay. So this was the thing which we just saw, and let's do some exercises. रो मत, ठीक है। रो मत, मैं खुश हूं। मैं खुश हूं। एंड लुक, दोबारा देखो। दोबारा देखो, ठीक है। जरूर आना, जरूर आना। ओके, जरूर आना। एंड कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं, ठीक है। सो देर आर 5 sentences which you have to convert in English, okay. हाँ, you have to convert in English. रो मत, मैं खुश हूं, दोबारा देखो, जरूर आना, एंड कुछ खास नहीं। How we are going to just translate all these sentences in English, okay. Let's translate all these sentences. ओके, सो लेट्स सी। रो मत, रो मत हम बना रहे हैं डोंट, हम बनाएंगे डोंट क्राई। डोंट क्राई, रो मत, या फिर डोंट वीप, ठीक है। डोंट वीप, वीप भी हमारे पास एक वर्ड है रोने के लिए। रो मत, डोंट क्राई, डोंट वीप, रो मत। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, सिंपल। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। दोबारा देखो, लुक एट अगेन, लुक एट अगेन, दोबारा देखो। जरूर आना, ठीक है, जरूर आना। प्लीज डू कम,
जरूर आना, प्लीज डू कम और मस्ट कम, मस्ट कम, ठीक है। कुछ खास नहीं, कैसे बोलते हैं हम, कुछ खास नहीं, व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, और तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, नथिंग स्पेशल, और यस आई एम डूइंग स्पेशल थिंग्स, नथिंग स्पेशल, यू विल से लाइक नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, ठीक है। सो इस तरह से हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जस्ट यू हैव टू रिपीट ऑल दीज सेंटेंसेस, डोंट क्राई, आई एम हैप्पी, लुक एट अगेन, please do come, must come, or nothing special, okay? So just write it down in your notebook and practice 1 or 2 times. This it will like, yes, you will learn lots of sentences, okay? So be quiet, चुप रहो, ठीक है। be calm, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो को हम बोलेंगे be quiet, QUIET, be quiet और be calm, be calm, 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 ठीक है। L साइलेंट हमारे पास यहाँ पे, so be quiet, चुप रहो, और be calm, चुप रहो, ठीक है। be serious हो जाओ। Most of the people are not serious in their life, in their work, but हमें serious रहना, serious होके काम करना, like be serious, हाँ, while learning English, be serious while doing your work, be serious while you're doing your business, so be serious मतलब serious हो जाओ, अच्छे से करो, ठीक है, जोक से मत लो उसको, be serious हो जाओ। be ready हो जाओ, be रेडी हो जाओ, ठीक है। बी रेडी या गेट रेडी भी बोल सकते हो, गेट रेडी, बी रेडी, गेट रेडी, ठीक है। बी रेडी, गेट रेडी हो जाओ। एंड रिक्वेस्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, खुद की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, खुद की इज्जत करो। I am not going to write all these Hindi words here because it will take lots of time, ठीक है। Be quiet, हम just simple हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। Be quiet और be calm, ठीक है। Be quiet और be calm का मीनिंग होता है चुप रहो, खामोश रहो। Be serious हो जाओ, जनरली हम बोलते हैं, ठीक है। Be रेडी रहो, बी रेडी हो जाओ, गेट रेडी हो जाओ। सो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, जस्ट यू हैव टू लिसन इट एंड रिपीट, इफ यू वांट यू कैन राइट इट। रिस्पेक्ट योरसेल्फ, आई एम गोइंग टू से लाइक रिस्पेक्ट योरसेल्फ, खुद की इज्जत करो, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, ओके। एंड बी फेयरलेस मीन्स क्या है, बी फेयरलेस मतलब निडर रहो, डरो मत, बी फेयरलेस। लाइक आई एम गोइंग टू से लाइक इफ यू आर गोइंग टू गिव एनी स्पीच, सो बी फेयरलेस व्हाइल गिविंग द स्पीच, निडर रहो, डरो मत, ठीक है। बी फेयरलेस व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, लाइक सपोज आई एम टीचिंग यू ऑल, सो आई शुड बी फेयरलेस, हमें फेयरलेस होना चाहिए, ठीक है। सो बी फेयरलेस। अगर हम कहीं भी फॉर एग्जाम्पल लाइक FEAR, फेयर मीन्स डर, और हम किसी भी वर्ड में अगर LESS यूज कर रहे हैं तो ये हमें निगेटिव का मीनिंग देता है, ठीक है, ये निगेटिव का मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टरलेस, ठीक है, कैरेक्टर अखलाक एंड कैरेक्टरलेस बगैर अखलाक वाला। So we use less for negative meaning. Now let's do some exercises. Yes, let's do some exercise like बहुत सारा, ठीक है, हम बोलेंगे बहुत सारा,
ठीक है, मैंने बोला बहुत सारा। ऊपर देखो, ऊपर देखो, दोबारा, दोबारा, एंड रास्ता दो, रास्ता दो, एंड मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। ठीक है, सो ये सारे सेंटेंसेस है। जस्ट वी हैव टू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ओके, सो दिस इज अ एक्सरसाइज व्हिच वी हैव टू डू। लेट्स डू द एक्सरसाइज। बहुत सारा, बहुत सारा को हम क्या बोलते हैं? बहुत सारा, बहुत सारा को बोलते हैं a lot of, a lot of। ठीक है, a lot of या a lots of, a lot of, a lots of हम बोलते हैं बहुत सारा के लिए। और अगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है तो हम मच भी बोलते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल शुगर, राइस। ठीक है, सो मच, मच राइस, मच शुगर, एंड अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, ये यूज करते हैं बहुत सारा। अ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग। A lot of, a lots of। ऊपर देखो, look up, yes, look, देखो, look up, ऊपर की ओर देखो, ऊपर देखो, दोबारा, दोबारा, again, yes, एक वर्ड है हमारे पास again, again means दोबारा। ठीक है, again means दोबारा। रास्ता दो, इसको हम क्या बोलते हैं? give the way, रास्ता दो, गिव द वे, या फिर रास्ता दो, गिव द वे, या फिर एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी। ठीक है, रास्ता दो, मुझे देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, मुझे देखो। ठीक है, गिव द वे, गिव मी, मुझे दो, गिव इट टू मी, ये मुझे दो, मुझे देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। ठीक है, सो ये 5 सेंटेंसेस थे जिसके हमने एक्सरसाइज की जस्ट। सो हम इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, देन वी आर डूइंग सम एक्सरसाइजेस टू रिमेंबर लाइक हाउ मेनी वर्ड्स वी रिमेंबर टुडे। ओके, यस, सो दिस एक्सरसाइजेस वी कंप्लीटेड एंड नाउ लर्निंग। स्टे फोकस्ड, अगर हम बोलते हैं स्टे फोकस्ड, ठीक है, स्टे फोकस्ड मतलब अपना फोकस लगाए रखो, अपना ध्यान लगाए रखो। स्टे फोकस्ड, फोकस्ड रहो, ध्यान लगा के रखो। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं स्टे फोकस्ड। एंड हाउ इज बिजनेस, बिजनेस कैसा चल रहा है? हाउ इज बिजनेस, हाउ इज बिजनेस, बिजनेस कैसा है या फिर कैसा चल रहा है? हाउ इज बिजनेस, बिजनेस कैसा चल रहा है? You are joking, you are joking, तुम मजाक कर रहे हो। You are joking, तुम मजाक कर रहे हो। ठीक है, joking, you are joking। We were late, हम लोग लेट थे, हम बोलेंगे we were late, we were late, हम लेट थे। We were getting late, हम लोग लेट हो रहे थे। ठीक है, लेट हो रहे थे। you are joking, we were late, हम लोग लेट थे। we were getting late, हम लोग लेट हो रहे थे। ठीक है, and what nonsense, what
नॉनसेंस, क्या बकवास है। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, नॉनसेंस मीन्स बकवास, मैंने लिख दिया बकवास, ठीक है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, हम बोलते हैं, ठीक है। एंड नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज। अभी ये सुबह है, ठीक है, अभी सुबह है। अभी सुबह है, अभी अभी शाम है, अभी शाम है। चिल्लाओ मत, कैसे बोलेंगे? चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। क्लोज, इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो, ठीक है, इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो। एंड इसे खोल दो, इसे खोल दो, इसे बंद कर दो, इसे खोल दो, ठीक है। सो लेट्स मेक सेंटेंसेस of Hindi sentences. There are 5 sentences, 2 to 4 and 5. So you have to make the 5 sentences and then compare how you made it. इससे अभी सुबह है, अभी मैंने लिखा है, ये होगा अभी, इस तरह से, ठीक है। सो अभी मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, जस्ट गिव मी अभी, ऐसे हम लिखते हैं ना, अभी, अभी, ठीक है। अभी सुबह है, सो इसके लिए हम बोलते हैं अभी सुबह है, इसके लिए हम बोलते हैं इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। अभी सुबह है, ये सुबह है, ठीक है, इट्स मॉर्निंग। अभी शाम है, इट्स इवनिंग, इट्स इवनिंग। अभी शाम है या ये शाम है, इट्स इवनिंग। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, शाउट मीन्स चिल्लाना, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो, क्लोज इट, इसे बंद कर दो। एंड इसे खोल दो, ओपन इट। Okay, so you have to make sentences like this, okay, and just remember all these sentences because these are the sentences which are very small sentences which we are going to use in our daily life. It's morning, it's evening, don't shout, close it, open it. Okay, open it, close it and open it. And now we are going to learn another sentences like never realized, कभी रियलाइज नहीं हुआ, ठीक है। नेवर रियलाइज्ड, कभी रियलाइज नहीं हुआ। आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मतलब खुद का बिजनेस करता हूं, खुद ही, ठीक है। आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। एंड बी फेयरलेस, हमने देख लिया था इसको, बी फेयरलेस को हमने देख लिया था कि बी फेयरलेस मतलब निडर हो जाओ, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ, ये भी हमने देख लिया था, रिस्पेक्ट योरसेल्फ मतलब खुद की रिस्पेक्ट करो। एंड बी पॉजिटिव रहो, ठीक है।
बी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, ठीक है। एवरी टाइम यू हैव टू थिंक गुड, ओके, बी पॉजिटिव। सो इसमें कुछ सेंटेंसेस हमारे रिपीट हुए हैं जो हमने ऑलरेडी देखे थे पहले, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट डू एक्सरसाइज लाइक, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूं, ठीक है। सो उसके लिए हम बोलेंगे आई स्वेयर, आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं, आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं, ठीक है। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आपको बोलना है इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। एंड इज इट राइट, क्या ये ठीक है, इज इट राइट, क्या ये ठीक है, इट इज राइट, ये ठीक है, ठीक है। इज इट राइट, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव हो गया, इज इट राइट, क्या ये ठीक है, इज इट राइट। और यू कैन से लाइक इट इज राइट, ये ठीक है। और हु इज ही, वो कौन है, हु इज ही, हु इज ही, वो कौन है, ही इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, ही इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत। इफ शी इज a girl, so you will use she is a beautiful and he is handsome, okay, she is beautiful बोलो, she is beautiful, he is handsome, okay, he is handsome. And now more sentences, make preparations मतलब तैयारी करके रखो, make preparations, तैयारी करो, ठीक है। make preparations तैयारी करो, make preparations तैयारी करो। and make breakfast, prepare breakfast, ठीक है। prepare breakfast और make breakfast मतलब नाश्ता बनाओ, make breakfast नाश्ता बनाओ, prepare breakfast नाश्ता तैयार करो। I am cold, ठीक है, I am feeling cold. If you are feeling cold, like मुझे ठंडी लग रही है, I am feeling cold, मुझे ठंडा लग रहा है, मुझे ठंडी लग रही है। और I am cold, I am feeling cold, okay. I am afraid, मैं डरा हुआ हूं, I am afraid, मैं डरा हुआ हूं, I am afraid, मैं डरा हुआ हूं। एंड डर लग रहा है, I am afraid, मैं डरा हुआ हूं या मुझे डर लग रहा है, ठीक है। इट्स सीरियस, ये इट्स सीरियस, ये सीरियस है, इट्स सीरियस। अगर कुछ हुआ, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मैटर हुआ, कुछ इश्यू हुआ, सो वी आर गोइंग टू से लाइक, पीपल आर सेइंग लाइक इट्स सीरियस, ये तो सीरियस है, मतलब ठीक है कि ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है, ये सीरियस है। सो वी कंप्लीटेड this exercise also, it's serious. And how many exercises are there? Oh yes, there are lots of exercises now, ठीक है। it's serious and now very bad. For example, like मुझे बोलना है very bad, बहुत बुरा, ठीक है। very bad या useless, very bad means bad, बुरा, बहुत बुरा हुआ, it's very bad, बहुत बुरा। वेरी बिग, बहुत बड़ा, वेरी बिग, बहुत बड़ा। वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। वेरी फार, बहुत दूर, वेरी फार, बहुत दूर, बहुत दूर, वेरी फार। वेरी क्लोज, बहुत करीब, बहुत नजदीक, वेरी क्लोज, बहुत नजदीक, ठीक है। सो हमने ये सारे सेंटेंसेस देखे। वेरी बैड, बहुत बुरा, वेरी बिग, बहुत बड़ा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, वेरी फार, बहुत दूर, वेरी क्लोज, बहुत नजदीक, बहुत करीब, ठीक है।
एंड नाउ लर्निंग इट्स अट्रैक्टिव। अगर हमें बोलना है कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब दिल को लुभाने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलते हैं इट्स अट्रैक्टिव। इट्स अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, इट्स अट्रैक्टिव। इट्स ऑफुल, बुरा, इट इज वेरी बैड। यू कैन से इट इज वेरी बैड या फिर ऑफुल, AW ऑफुल, इट इज ऑफुल, बहुत बुरा है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं बुरा, बुरा, और इसको बोलते हैं अच्छा। इट्स अट्रैक्टिव, ये बहुत अच्छा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इट्स वेरी बैड, ये बहुत बुरा है, और ऑफुल, ठीक है। इट्स अमेजिंग, ये बहुत अच्छा है। इट्स अमेजिंग हम बोलते हैं ना, इट्स अमेजिंग, कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। इट्स ओवर, ये तो खत्म है, हाँ, इट्स ओवर, ये खत्म है, ठीक है। इट्स मेल्टिंग, ये पिघल रहा है। इट्स मेल्टिंग, ये पिघल रहा है, ठीक है, इट्स मेल्टिंग। एंड नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस। Let's do some exercises. मैं थका हूं, मैं थका हूं, ठीक है, हूं, मैं थका हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ये गरम है, ये गरम है, ये गरम है। ये ठंडा है, ये ठंडा है, ये ठंडा है। ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू मेक ऑल दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश, ओके। मैं थका हूं, मैं ठीक हूं, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग ऑल दीज सेंटेंसेस। मैं थका हूं कैसे बनाएंगे? आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, ठीक है। आई एम टायर्ड, टायर्ड बोलते हैं थका हूं। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल, ओके। देयर आर 3 sentences which you can use मैं ठीक हूं। आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम डूइंग अमेजिंग। एंड ये गरम है, इसके लिए बोलोगे आप इट्स हॉट, ये गरम है। ये ठंडा है, इट्स कोल्ड, इट्स कोल्ड, इट्स हॉट, इट्स कोल्ड। एंड ये इंपॉर्टेंट है, इट्स इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी सम लर्निंग्स। इस सेंटेंस को तो हमने देख लिया। नाउ हम बोलते हैं डोंट माइंड, ठीक है, मतलब इसे दिल पे मत लो। डोंट माइंड बोलते हैं, डोंट माइंड। अगर आपने किसी को कुछ बोला और उसको लग रहा है, आपको लग रहा है कि उसको बुरा लग सकता है, तो आप बोलोगे कि प्लीज डोंट माइंड, मतलब दिल पे मत लो, ठीक है। डोंट शेम, शर्माओ मत। डोंट शेम, डोंट शेम, डोंट माइंड, डोंट शेम, डोंट oppose, don't oppose,
डोंट अपोज, अपोज मत करो, ठीक है, अपोज मत करो मतलब उसके खिलाफ मत बोलो, डोंट अपोज। डोंट ओवर कुक्ड, बहुत ज्यादा ना बनाओ, डोंट ओवर कुक्ड, डोंट ओवर कुक्ड मतलब ज्यादा मत बनाओ। डोंट ओवर थिंक, ओवर थिंक मत करो मतलब बहुत ज्यादा मत सोचो। डोंट ओवरथिंक, डोंट ओवरथिंक, ओवरथिंक मत करो, ठीक है, डोंट ओवरथिंक, ओवरथिंक मत करो। So these are 5 sentences which we met, and let's see. Don't overthink. 1 2 3, okay, 4 sentences are there. Don't overthink और ना बोलो, फॉर एग्जाम्पल डोंट स्पीक, उसके लिए हम बोलेंगे डोंट स्पीक, मत बोलो। मैंने आपको बोला डोंट स्पीक, स्पीक बोलो, डोंट स्पीक मत बोलो। नेवर स्पीक, कभी मत बोलो, ठीक है, डोंट स्पीक मत बोलो। डोंट टॉक, बात मत करो, डोंट टॉक, बात मत करो। डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, ठीक है। एंड डोंट मेक फ्रेंड, डोंट मेक अफ्रेड, डोंट मेक अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरो मत, डोंट स्केयर, डरो मत। डोंट फाइट, लड़ाई मत करो। या फिर स्केयर, डोंट स्केयर, ठीक है। सो ये हमारे 5 सेंटेंसेस हैं। डोंट स्पीक, बोलो मत, डोंट टॉक, बात मत करो, डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, डोंट मेक अफ्रेड और डोंट स्केयर, डरो मत, डोंट फाइट, लड़ाई मत करो, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न सम अदर सेंटेंसेस। Other sentences like stop fuzzing, stop fuzzing मतलब रोना धोना बंद करो। अगर आपको बोलना है स्टॉप, अगर आपने बोला स्टॉप फजिंग, FUSSING, स्टॉप फजिंग, रोना धोना बंद करो, ठीक है। स्टॉप फजिंग, फ्यूजिंग, लेट्स सी द प्रोनाउंसिएशन, ओके। So we are going to see FUSSING. FUSSING, fuzzy. Okay, UK, US. Fuzz, fuzz. Okay, fuzzing, fuzzing. Fuzz. ओके, सो फज, इसको बोलते हैं फजी, FUSS, फज का ट्रांसलेशन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सो डोंट फजिंग, FUSS, ठीक है। हम गूगल पे देखते हैं, लेट्स सी ऑन गूगल व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस प्रोनाउंसिएशन, ओके। यस, Fuzzing, fussing, fuzzing. fussing, yes. So the pronunciation of this word is fussing. Stop fuzzing, FUSSING, stop fuzzing, okay. So if you are not sure about the pronunciation, we have to go on the dictionary or Google, we have to just take the pronunciation. Fuzzing, fuzzing, okay. Stop fuzzing मतलब रोना धोना बंद करो, this is the translation. Stop whistling, stop whistling, WHISTLI, stop whistling, stop whistling means सीटी बजाना बंद करो, yes, सीटी बजाना बंद करो। स्टॉप whistling, स्टॉप fuzzing,
Okay, so all these sentences which we have to use, which we have to remember: stop fussing, stop whistling, and stop annoying. ठीक है, teasing, परेशान करना. So उसके लिए हम बोलेंगे stop annoying, ANNOYING, stop annoying, stop annoying, या फिर teasing, teasing. Okay, stop annoying या stop teasing. stop worrying, परेशान मत हो. stop worrying, stop worrying, परेशान होना बंद करो. ठीक है, don't worry, हम बोलते हैं ना don't worry, परेशान मत हो. stop wriggling, ठीक है, हिलना बंद करो. stop wriggling बोलते हैं, WRIGGLING, wriggling. ठीक है, stop wriggling, WRIGGLING, stop wriggling, हिलना बंद करो. ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिलना. stop wriggling, हिलना बंद करो. ठीक है, so these are 5 sentences which you might think like these sentences are hard, but if we are going to practice like stop fuzzing, stop whistling, stop annoying, stop worrying and stop wriggling. ठीक है, so ये सारे sentences हमें practice करने. If we are going to practice, we are going to know. Okay, now these are some advanced sentences which we are going to see. Let's see all these sentences. Walls have ears. Walls have ears. WALLS. Walls have. Guess करो, इसका meaning guess करो. Just. Walls have ears. इसका meaning guess करो, क्या हो सकता है? What is the meaning of this sentence? Walls दीवारें. Walls दीवारें. Have हैं, उनके पास होती है, या फिर ears दीवारों के कान होते हैं. Yes, आपने सही गेस किया, दीवारों के भी कान होते हैं. A leopard can't change its spots. ठीक है, a leopard, a leopard can't change its spot. ठीक है, its spots. A leopard can't change its spot means कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती. So these are some advanced word which we are using in Hindi, and these are the some word. A leopard can't change its spot. Make hay while the sun shines. बहती गंगा में हाथ धो लो. ठीक है, make hay while the sun shines. Listen to people but obey your conscience. ठीक है, सुनो सबकी, करो अपनी. Might is right. जिसकी लाठी उसकी भैंस. Might is right. Might is right, ये बहुत मस्त है. Might is right. Might is right. A little knowledge is dangerous. A little knowledge is dangerous. A little knowledge is dangerous means थोड़ा जो भी थोड़ा सा जो थोड़ी सी जो नॉलेज होती है ना, वो बहुत ही खतरनाक होती है. A little knowledge is dangerous. थोड़ी सी नॉलेज या थोड़ा सा ज्ञान वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है. So today we practice lots of sentences, and tomorrow also we are going to practice lots of sentences. So if you like all these exercises, just be connected with us, and we are going to practice tomorrow also. Okay, so thanks for today, and tomorrow also we are going to practice some more sentences which we are going to use in our daily life. And now
then we are going to complete our 60 days spoken English challenge. So thank you. Signing off.